Hello students, today I am going to discuss part 9th of Morphology of Flowering Plants. In this part we will discuss some important terms and symbols which are related to floral formula. These are the some terms which will be used at the time of writing a floral formula. First one is the complete flower. A complete flower is one in which calyx, corolla, androecium and gynoecium means all the four types or four walls of the flower are present, then it is called a complete flower. Incomplete flower is one in which any one of the four wall is missing. Suppose चार में से, चार का मतलब है सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम और गायनोशियम, इनमें से अगर एक भी मिसिंग है तो इसको हम इनकम्प्लीट फ्लावर कहेंगे. नेक्स्ट इज द बाइसेक्सुअल फ्लावर. बाइसेक्सुअल मीन्स इफ gynoecium and androecium are present in the same flower. अगर gynoecium यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हैं तो इसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे. उसके लिए एक सिंबल भी यूज होता है. ये सिंबल इस तरह का है, तो हम बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट इज द यूनिसेक्सुअल फ्लावर. यूनिसेक्सुअल फ्लावर आइदर androecium is present. If androecium is present, then this flower is called staminate flower, or gynoecium is present, then this flower is called pistillate flower. So unisexual flower is one in which only one sex is present, either the male reproductive part or androecium. अगर एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को हम स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे, और अगर गायनोशियम प्रेजेंट है तो उस फ्लावर को हम पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे. नेक्स्ट आर द टू टर्म्स मोनोसियस प्लांट एंड डायसियस प्लांट. ये चीज़ याद रखिए, ऊपर के जो दो टर्म हैं ये फ्लावर के लिए यूज किए गए हैं और ये प्लांट्स के लिए यूज किए गए हैं. तो मोनोसियस प्लांट इज वन इन विच बोथ मेल and female flowers are present on the same plant. एक ही प्लांट में अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों प्रेजेंट हैं तो उसको मोनोसियस प्लांट कहेंगे, और अगर मेल और फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट प्लांट, सेपरेट प्लांट, देन द प्लांट विल बी known as dioecious plant. For example, in case of papaya, पपीते में मेल फ्लावर एक प्लांट में प्रेजेंट होता है और फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट में प्रेजेंट होता है, तो इस तरह के प्लांट को हम डायसियस कहेंगे. तो देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन बिटवीन द बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड डायसियस प्लांट, बिकॉज बाइसेक्सुअल फ्लावर इज वन इन विच बोथ एंड्रोशियम एंड गायनोशियम आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर, and dioecious plant is one in which male and female flowers are present on two different plants, and monoecious is one in which both male and female flowers are present on the same plant. So these are the terms which will be used at the time of writing floral formula. Next is the symmetry of flower. Floral symmetry is of three types. First one is the actinomorphic, radial or regular symmetry. When flower is divided by any vertical plane into two equal halves, तो अगर कोई भी फ्लावर है जिसको हम एक लाइन खींचकर बहुत सारे इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, then this is called actinomorphic flower. Examples are mustard, China rose, datura and chili. This one is the actinomorphic flower. This one is the actinomorphic flower. Here, if you draw a line like this, then it can be divided into two equal halves. This part will be symmetrical to this one, and if you draw a line like this,
then again this part will be symmetrical to this part, and if you draw a line here, then this left part will be symmetrical to the right hand side, and if you draw a line here, then the upper part is symmetrical to the lower part. It means here there are many line of symmetry can be drawn to divide a फ्लावर इंटू टू इक्वल हाफ्स। तो अगर फ्लावर में बहुत सारे लाइन ऑफ सिमेट्री पाई जाती हैं, जैसे यहाँ पे हमने 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की हैं, और हर लाइन ऑफ सिमेट्री फ्लावर को 2 सिमेट्रिकल पार्ट में डिवाइड करती हैं, तो इस तरह के फ्लावर को हम एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। और इसके लिए जो सिंबल यूज करेंगे हम, वो इस तरह का सिंबल यूज होगा, एक सर्किल बना के इसमें प्लस का निशान लगाएं। नेक्स्ट इज द जाइगोमॉर्फिक और बाइलेटरल। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि ए लाइन विच कैन डिवाइड ए फ्लावर इनटू 2 लेटरल सिमेट्रिकल पार्ट। व्हेन फ्लावर इज डिवाइडेड इनटू 2 equal halves only by one vertical plane. Here you can see it is given here that by one vertical plane, सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इस तरह के फ्लावर को हम जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहेंगे, और ऐसा पी में पाया जाता है, बीन में, गुलमोहर एक्सेट्रा। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये एक एग्जाम्पल है जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का। यहाँ पे ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री कैन बी ड्रॉन, सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर बनाई जा सकती है, सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की जा सकती है, यानी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड का सिमेट्रिकल होगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे नीचे 3 पेटल्स हैं, ऊपर 2 हैं, तो ये पार्ट सिमेट्रिकल नहीं होगा। इस एक लाइन ऑफ सिमेट्री के अलावा यहाँ पर कोई दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है। तो ऐसा फ्लावर वेयर ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री इज प्रेजेंट and it divides the flower into 2 equal halves, then this type of flower is called zygomorphic flower, and the symbol used is of %। जो % का साइन होता है वही सिंबल इसके लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज द asymmetrical flower, when flowers cannot be divided into 2 equal halves from any plane। यहाँ पर क्या है कि फ्लावर को हम 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं कर सकते हैं फ्रॉम एनी प्लेन। यहाँ पर कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं पाई जाती है। जैसे ये फ्लावर है, इस फ्लावर में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सपोज अगर हम यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहे हैं, देन दिस पार्ट विल नॉट बी सिमेट्रिकल, दिस पार्ट विल नॉट बी सिमेट्रिकल टू दिस। So here in this flower there is no line of symmetry, so this type of flower is called asymmetrical flower. This type of flower is called zygomorphic flower, and where many line of symmetry is there, it is called actinomorphic flower. Here again we will see the same symmetry of flower. Here we can draw a line here. If we draw a line here, then we can divide this part will be symmetrical to this, क्योंकि ये leaves इसके ऊपर आ जाएगी, ये petal इसके ऊपर आ जाएगा। So there are many line of symmetry is there. Then this is called actinomorphic. इसको actinomorphic flower कहेंगे, और इसके लिए जो सिंबल यूज होगा वो सर्किल के अंदर प्लस बना के इसको हम फ्लोरल फार्मूला में शो करते हैं। जाइगोमॉर्फिक में यहाँ आप देख सकते हैं देयर इज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। दिस पार्ट, राइट पार्ट इज सिमेट्रिकल टू द लेफ्ट पार्ट, एंड इट कैन बी शोन बाय पुटिंग दिस साइन ऑफ %, एंड हियर so this one is the zygomorphic flower, because there is only one vertical line which can divide the flower into 2 symmetrical parts, and here there is no line of symmetry can be drawn. यहाँ पर
क्योंकि इस पेटल का साइज डिफरेंट टाइप का है। अगर यहाँ पर हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ भी करते हैं, then this part will not be symmetrical to the other part. So there is no line of symmetry here. There is no line of symmetry in this flower. So such type of flower are known as asymmetrical. Such type of flower are known as asymmetrical flower. There are few other terms. Some flowers are known as bracteolate. Bracteolate, and others are known as bracteate. So bracteolate are those which have bracteole, जिनके पास ब्रैक्टियोल होगा उसको ब्रैक्टियोल होगा उसको ब्रैक्टियोलेट फ्लावर कहेंगे, और जिसके पास ब्रैक्ट्स होंगे, जिन फ्लावर के पास ब्रैक्ट्स होंगे उनको हम ब्रैक्टिएट फ्लावर कहते हैं। यहाँ पे आप देख, अब ये सवाल ये है कि ये ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोलेट क्या चीज़ होती है। देखिए, लीफ में हमने डिस्कस किया था कि लीफ, अगर ये एक लीफ है तो यहाँ पर भी कुछ लीफ लाइक स्ट्रक्चर आर डेवलप्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द लीव्स एंड दीज आर कॉल्ड स्टिप्यूल्स। यहाँ पर भी यही है, ये लीफ का एक्सिल है and there may be some leaf-like structures may develop from the base of the flower and these are called bracts. इनको ब्रैक्ट कहा जाता है। These are the bracts. Here also ये फ्लावर है, फ्लावर की एक्सिस से या बेस से जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलता है इसको हम ब्रैक्ट्स कहते हैं। दूसरा जो टर्म है ब्रैक्टियोलेट, क्या होता है? ब्रैक्टियोलेट यहाँ पर है। Bracteolate are present. These are also some small leaf-like structures. They arise just below the flower. Flower के थोड़ा नीचे अगर कोई leaf-like structure निकल रहा है तो इसको bracteolate कहेंगे, और अगर flower के axis से कोई leaf-like structure निकल रहा है तो इसको bract कहेंगे। तो ऐसा flower जिसके अंदर bracteole present है, ये structure present है, उसको bracteolate कहेंगे। अदरवाइज उसको ई ब्रैक्टियोलेट कहेंगे। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं है तो हम इसमें ई और लगा देंगे कि ई ब्रैक्टियोलेट। ई ब्रैक्टियोलेट। इसी तरह से अगर ब्रैक्ट्स प्रेजेंट हैं फ्लावर में तो ब्रैक्टिएट फ्लावर कहलाएगा, और ब्रैक्ट्स नहीं प्रेजेंट है तो उसको ई ब्रैक्टिएट फ्लावर कहा जाएगा। Here some symbols are given. For example, if a flower is bracteate, then we will write in formula BR. डॉट नहीं लगाएंगे, BR लिखेंगे। अगर फ्लावर में ब्रैक्ट्स प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम EBR लिखेंगे। अगर ब्रैक्टियोलेट प्रेजेंट है तो उसको हम BRL लिखेंगे फ्लोरल फॉर्मूला में। अगर उसमें ब्रैक्टियोलेट प्रेजेंट नहीं है तो उसको ई ब्रैक्टिएट कहेंगे, और उसके लिए हम EBRL लिखेंगे। तो ये आपको ये सारे सिंबल्स याद होने चाहिए कि इफ़ ए फ्लावर हैविंग ब्रैक्ट्स देन फ्लावर इज कॉल्ड ब्रैक्टिएट एंड द सिंबल यूज फॉर these bracteate flower is the BR. We will write BR in the floral formula. If there is no bracts are present in a flower, then it is written as, they are called E bracteate, that's why they are written as EBR. If bracteolate are present, then BRL is written in the floral formula. If there is no bracteolate, then the flower is called E bracteolate flower and we will write EBRL.
Next, we have already discussed that actinomorphic flower is one in which there is many line of symmetry and the flower can be divided in more than one type of symmetrical part. And symbol used for actinomorphic flower is this plus sign within a circle. Next, within the zygomorphic, if there is only one line of symmetry, then this symbol will be used, sign of %. If flower is bisexual, then this type of symbol, यानी ये सर्किल बनाकर एक, ये बाइसेक्चुअल फ्लावर के लिए यूज किया जाएगा. अगर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हैं, देन दिस सिंबल विल बी यूज्ड. अगर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंड्रोशियम प्रेजेंट है तो इस सिंबल का यूज किया जाएगा. इसमें सर्किल के ऊपर ये एरो होगा. अगर ये फीमेल पार्ट फ्लावर के अंदर सिर्फ फीमेल पार्ट है, मेल पार्ट नहीं है, तो उस फ्लावर को हम पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे. एंड दिस सिंबल विल बी यूज्ड. यहाँ पर इस सर्किल के नीचे प्लस साइन का यूज किया जाएगा. Similarly, to represent androecium in floral formula, this A letter will be used. To represent gynoecium, G will be used. If flower is neuter, neuter means if there is no male and female reproductive part are present in a flower, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों ही एब्सेंट हैं फ्लावर के अंदर से, तो उसको हम न्यूटर कहते हैं. पेरियंथ हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कैलिक्स और कोरोला अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, तो इसके लिए हम पी लेटर का यूज करेंगे. कैलिक्स के लिए के लेटर का यूज किया जाएगा और कोरोला के लिए सी लेटर का यूज किया जाएगा फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर. नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट आर रिटन एट द राइट फुट ऑफ द सिंबल. फ्लोरल फॉर्मूला में कितने फ्लोरल पार्ट्स हैं उसको लेटर के राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ लिखा जाएगा. इफ़ दे आर फ्यूज्ड, अगर ये फ्यूज्ड हैं तो उनको ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा. जैसे सेपल्स, यहाँ पे 5 सेपल्स हैं एंड दे आर फ्री. दे आर 5 सेपल्स एंड दे आर फ्री. देन वी विल राइट K5, 5 लिखा हुआ है. लेकिन इफ़ दे आर 5 सेपल्स एंड दे आर फ्यूज्ड, देन these will be written within the bracket. यहाँ पे देखेंगे 5 को ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है. ब्रैकेट के अंदर लिखे होने का मतलब है कि ये जो सेपल्स हैं ये फ्यूज्ड हैं. इसी तरह से पेटल्स अगर 6 हैं तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे C6. अगर पेटल्स 5 हैं और फ्यूज्ड हैं तो इनको हम इस तरह से लिखेंगे C5 एंड 5 विद इन द ब्रैकेट. ये चीज़ याद रखिए, अगर 5 ब्रैकेट के बाहर है तो इसका मतलब पेटल्स फ्यूज्ड नहीं हैं, और अगर पेटल्स फ्यूज्ड हैं तो उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. इसी तरह से स्टेमेंस अगर 10 हैं एंड दे आर फ्री, देन दे विल बी रिटन एज आउटसाइड द ब्रैकेट. ब्रैकेट के बाहर इसको लिखा जाएगा. और अगर स्टेमेन 10 है इन 2 वॉल ऑफ 5 ईच, 10 स्टेमेन हैं यहाँ पर, लेकिन ये 2-2 के ग्रुप में प्रेजेंट हैं और हर ग्रुप में 5 स्टेमेन हैं, तो इसको हम 5 + 5 लिखें. तो समझ लीजिए, अगर स्टेमेन्स 10 हैं और एक साथ प्रेजेंट है तो इसको हम 10 ही लिखेंगे. और अगर स्टेमेन 10 है और 5-5 के ग्रुप में है, जैसे अगर ये स्टेमेन हमने बनाए 1 2 3 4 एंड 5, ये एक ग्रुप हो गया. दूसरा ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है 1 2 4 5. तो इस तरह से अगर ये 2 ग्रुप में एक अंदर ग्रुप है एक बाहर ग्रुप है, इस तरह का ग्रुप है, तो ये 5 + 5 लिखा जाएगा. नेक्स्ट इज अगर स्टेमेन इनडेफिनेट हैं, देन वी विल राइट A and a sign of like this to show that indefinite number of stamens are present. Here, if stamens are 10 and diadelphous, we have discussed diadelphous means the stamens are present in a group of 2.
फॉर एग्जाम्पल हेयर एग्जाम्पल ऑफ P इज गिवन, और ये हमने ड्रॉ भी किया था कि यहाँ पर 9 स्टेमन का एक ग्रुप होता है. Here 9 stamen are present in one group and one stamen forms single stamen is present separately. तो क्योंकि 9 एक बंडल बना रहे हैं तो इसको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, और 1 जो है वो फ्री है, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा है. तो 9 + 1 इस तरह का जो कोएशन पाया जाता है वो P के अंदर पाया जाता है. इस तरह के जो स्टेमन पाए जाते हैं वो P के अंदर पाए जाते हैं. 9 + 1 एंड दिस इज ऑल्सो स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड्रोशियम ऑफ P plant. Now carpels, if carpels are 2 and they are free, then they are written as G2, and carpels are, अगर ये बाई कार्पिलरी हैं यानी 2 कार्पिल प्रेजेंट हैं और ये सिन कार्पस का मतलब है ये फ्यूज्ड हैं. सिन कार्पस मीन्स फ्यूज्ड कार्पिल्स. तो इसको हम 2 को हम ब्रैकेट के अंदर लिख दें. कार्पल्स अगर 5 हैं और ये फ्यूज्ड हैं तो यहाँ पर उसी तरह से हम 5 को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे. ब्रैकेट के अंदर लिखे होने का मतलब है कि वो फ्यूज्ड हैं. देखिए एपीपेटलस कंडीशन को कैसे शो करते हैं. एपीपेटलस में द कोरोला इज अटैच टू द एंड्रोशियम, यानी एंड्रोशियम कोरोला से अटैच होता है. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. सपोज ये एक पेटल है और ये एक एंड्रोशियम है. ये एंड्रोशियम यहाँ तक इस पेटल से अटैच है, देन इट इज़ फ्री. जो एंथर है वो फ्री है. तो दिस पार्ट ऑफ द स्टेमन इज अटैच टू द पेटल. तो इसको हम कैसे शो करते हैं, इसको हम C लिखेंगे कोरोला यानी पेटल्स के लिए, A लिखेंगे एंड्रोशियम के लिए क्योंकि ये C है और ये A है और ये एक दूसरे से अटैच हैं. तो इसके ऊपर एक आर्क का यूज करेंगे, जैसा यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक आर्क का यूज करेंगे. इसी तरह से एपीफाइलस में क्या होता है. देखिए एपीपेटलस में एंड्रोशियम पेटल से अटैच होता है. एपीफाइलस में एंड्रोशियम इज अटैच टू द पेरिएंथ. ये पेरिएंथ से अटैच होगा. तो पेरिएंथ के लिए हम P लेटर का यूज करते हैं और एंड्रोशियम के लिए A का यूज करते हैं, और उसके ऊपर हम यहाँ भी एक आर्क का यूज करेंगे, यानी एंड्रोशियम पेटल से अटैच्ड है. हमने फ्लोरल पार्ट और ओवरी की पोजीशन को लेकर 3 कैटेगरी पढ़ी थी. अगर ओवरी सुपीरियर है, पहली चीज़ ओवरी सुपीरियर है, then it is shown by horizontal line underline below the number. नंबर के नीचे यहाँ पर हम एक लाइन शो करेंगे. इसका मतलब है ओवरी लाइन के ऊपर है, यानी ये ओवरी सुपीरियर है. इन्फीरियर ओवरी के लिए लाइन को हम ऊपर ड्रॉ करेंगे. आप यहाँ देख रहे हैं ये लाइन ऊपर ड्रॉ की गई है, यानी लाइन के नीचे गायनोशियम या ओवरी को लिखा गया है, इसलिए ओवरी क्या हो गई, इन्फीरियर हो गई. पेरीगाइनस में क्या होता है कि जितने भी फ्लोरल वॉल होते हैं दे आर प्रेजेंट एट द सेम लेवल. तो यहाँ पर जो लाइन है हम इसको ऊपर या नीचे नहीं लिखेंगे, इसको हम बीच में इस लाइन को ड्रॉ करेंगे. तो ये चीज़ याद रखिए. सुपीरियर ओवरी के लिए ओवरी को लाइन के ऊपर लिखा जाएगा. इन्फीरियर ओवरी के लिए ओवरी को लाइन या गायनोशियम को लाइन के नीचे लिखा जाएगा, और पेरीगाइनस ओवरी के लिए बीच में लाइन को बीच में बनाया जाएगा, इसको ऊपर या नीचे नहीं लिखेंगे. Some are given. First is the example of Brannan aeratus. This is the floral formula of this flower. First, we can see that here BR is bracteate. BRL means because also bracteolate, so BRL is written. Next is here
this is not given, this structure should be present here. It means that it is actinomorphic. Actinomorphic, we have discussed that a flower in which any line of symmetry can be present. हर्माफ्रोडाइट हम कहते हैं बाइसेक्सुअल, इसके लिए ये सिंबल तरह का होता है। उसके बाद कैलिक्स यहाँ पर 5 हैं, 5 हैं, दे आर फ्री। अगर ये फ्यूज्ड होते 5 को हम ब्रैकेट के अंदर लिखते, बिकॉज दे आर फ्री सो दे आर रिटन आउटसाइड द ब्रैकेट। दे आर पॉलीसेप्लस। पॉलीसेप्लस मीन्स ये 3 हैं इसलिए पॉलीसेप्लस। कोरोला 5 हैं, 3 हैं, पोलीपेटलस हैं। पोलीपेटलस और गैमोपेटलस 2 तरह के पेटल्स पाए जाते हैं। गैमोपेटलस का मतलब यूज्ड और पोली का मतलब है फ्री। यहाँ पर इसको हम देखेंगे, कोरोला को हम से रिप्रेजेंट करते हैं। दे आर 5 पेटल्स आर प्रेजेंट एंड दे आर फ्री, दैट्स व्हाई नोन एज पोलीपेटलस। एंड्रोशियम आर indefinite and they are free. So here a sign of indefinite is with androecium. यहाँ पर indefinite number of stamens are present. Next, last one is the gynoecium. Gynoecium is polycarpillary apocarpus superior ovary. Polycarpillary means यहाँ many carpels will be present. अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे ये 5 कार्पल होते और एपोकार्पस का मतलब है फ्री कार्पेल हैं, सिन कार्पस का मतलब है फ्यूज, यहाँ पे हम 5 लिख देते। सुपीरियर ओवरी अभी हमने डिस्कस किया, ओवरी को सुपीरियर शो करने के लिए तो हम लाइन के ऊपर लाइन के ऊपर बना रहे हैं तो जाहिर है ये सुपीरियर हो गई। तो इस तरह से ये जो 3 लाइन में जो भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है फ्लावर को, इसको हमने इतनी छोटी सी जगह में लिख दिया है द फॉर्म ऑफ फ्लोरल फॉर्मूला। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं सोलेनम नाइग्रम का। सोलेनम नाइग्रम का जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो ये है। यहाँ पे ये एक्टिनोमॉर्फिक है तो ये सिंबल हम बना लेंगे। सिंबल इस तरह का है, क्लियर नहीं दिख रहा है। ए सर्किल, ए प्लस साइन विद इन अ सर्किल। तो ये क्योंकि ई ब्रैकेट है, ई ब्रैकेट के लिए सिंबल यूज करते हैं EBR करते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक है इसके लिए हम यही सिंबल यूज करते हैं। सर्किल के अंदर हम प्लस साइन, ये वही साइन है। हर्माफ्रोडाइट मीन्स दैट फ्लावर इज बाइसेक्सुअल। फॉर दिस वी हैव राइट दिस टाइप ऑफ सिंबल। हियर कैलिक्स आर 5 एंड गैमोसेपुलर। सेपल्स क्या हैं? गैमोसेपलस का मतलब है फ्यूज्ड है, और अगर फ्यूज है तो सेपल्स को हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये सेपल्स हैं, दे आर 5 एंड दैट्स व्हाई रिटन विद इन द ब्रैकेट। नेक्स्ट इज कोरोला, दे आर ऑल्सो 5 एंड गैमोपेटलस, पेटल्स भी फ्यूज्ड हैं इसलिए इनको भी हमने ब्रैकेट के अंदर यहाँ लिखा हुआ है। एंड्रोशियम आर 5 एंड पोलीएंड्रस, ये फ्री हैं तो हमने यहाँ पर इसको 5 लिखा है और ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा है क्योंकि ये फ्री नहीं है, ये फ्री हैं। उसके बाद एपीपेटलस। एपीपेटलस अभी हमने इसका सिंबल देखा था। एपीपेटलस द कंडीशन इन विच एंड्रोशियम इज अटैच विद द पेटल्स। एंड्रोशियम कोरोला से अटैच होता है तो इसके लिए जो सिंबल यूज किया जाता है वो एक आर्क का हम यूज करते हैं। जैसे सी को ए से ये जोड़ता है तो इसका मतलब है सी ए से जुड़ा हुआ है या ये एपीपेटलस है। नेक्स्ट जो है गायनोशियम बाइकार्पिलर, यहाँ पे 2 कार्पेल हैं, सिन कार्पस है, कार्पस का मतलब अभी बताया आपको यूज्ड है तो इसको हमने बाइकार्पिलरी का मतलब है या 2 कार्पेल तो 2 लिखा है, और यूज्ड है सिन कार्पस है तो ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ओवरी सुपीरियर है तो इसको हमने ओवरी को लाइन के ऊपर लिखा है, और ओवरी इन्फीरियर होती है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, और यहाँ पे ओवरी सुपीरियर है तो इसको लाइन के ऊपर लिखें।